Hello my dear students, in the previous lecture video of standard 8 lesson number 15 area, we already completed 2 lecture. Okay, now this one is the lecture 3 and in this previous lecture I already solved the formula for area of rhombus. You can see in your textbook like this way, area of rhombus formula we derived. How the area of rhombus formula came from this figure, that also I told you. Okay, so what is the formula for area of rhombus? Area of a rhombus is equal to half into product of lengths of diagonal. Either like this way you can write, either you can write that half into d1 into d2 also. Right students, when the diagonal 1 and diagonal 2 is given to you, that time only you have to use the formula. Okay, now on base of this formula, now we are going to solve some question which was given in practice set 15.2. So I written here first one. You have to see in your textbook. Questions are given to you. Again I am writing in the question C. First of all, read the question carefully, then only you can solve. Okay. Lengths of the diagonal of a rhombus are 15 cm and 24 cm. Okay, find its area, means length of a diagonals of a rhombus. Figure is what here? Rhombus. So what you have to write here? Figure is what? Rhombus. So you have to write for a rhombus, means हमें किसके लिए फॉर्मूला अभी डिराइव करना है? rhombus के लिए. So we have to write firstly for a rhombus. For a rhombus, first diagonal and second diagonal is given to you. So you can write here length of a first diagonal you can write, otherwise you can write d1 is equal to 15 centimeter and d2 is equal to how much centimeter? 24 centimeter. Okay, and what you have to find? You have to find the area of a rhombus, right? So what you will write? Now you have to write the formula area of rhombus. What is the formula? Half into product of diagonals. Okay, then put the value of either like this way, right? Because d1 in d2 is there, so this formula we can write like this way also, half into d1 into d2. Now put the value of d1 and d2 from the given equation. So half into d1 means how much? 15 and d2 is how much? 24. Now you can cancel numerator. If in the table of numerator denominator is going like that way, if it is coming, so you can just cancel it. So 2 ones are and 2 ones are and 2 twos are. So what remain? 15 multiplied by 12. And students, always do on your right hand side roughs. Okay, don't do any rough part in back side of your book. Here only you can show 15 multiplied by 12. So how much is coming? 5 2s are 10, 1 goes to carry, 2 1s are 2, 3 multiplied by 5 1s are 5, 1 1s are 1. So how much coming? 180. So what is the answer? 180. Okay, this is your not last answer. What you have to write the last answer? Like this way. Therefore, area of rhombus is equal to 180 square centimeter. This is your last answer. Okay students, now let us solve the next question. So now read the next question. Lengths of the diagonals of a rhombus are, here also same procedure, diagonals length are given to you and you have to find the area of a rhombus, right student? So as we do in the first question, same thing we have to do here also. So what you are to do, यहाँ figures किसका है? rhombus का. So you have to write here for a rhombus d1 is equal to 16.5 centimeter and d2 is equal to 14.2 centimeter. Okay, then you have to write the formula. What? Area of rhombus is equal to half into product of diagonals. Okay, half into product of diagonals. So is equal to half, instead of product of diagonals what you have to write? d1 into d2. ठीक है, तो अब हमें वैल्यू पुट करना है d1 and d2 की. So right here half into d1 is how much here? 16.5 and d2 is 14.2. So you can see whether from the denominator numerator is going to gain. Yes.
2 ones are 2, 7s are point, decimal point, and 2 ones are. So what remain here? 16.5 multiplied by 7.1. So multiply here in the rough 165 and 71. Afterwards you can put the decimal point also. ठीक है, 5 ones are 5, 6 ones are 6, 1 ones are 1, into 7 5s are 35, 6 7s are 42, 40 4 45, then 5 4 ones are 4, 7 7, 8 9 10 11. Okay, do the addition. 11 5 6 7, here 1 1. So how much answer is coming here? 1 1 7 1 5. Okay, what is coming here? 11,715. So now decimal point after one digit, after decimal point one digit is there, after decimal point one digit is there. So how many digit after two decimal point? 1 2. So you have to put from back side 1 2 like this way. So this one is the not your last answer. So what you have to write the last answer? Therefore area of rhombus is equal to 117.1515 square centimeter. Okay student, if the units are given in meter, you have to write in meter. If the units are given in centimeter, so you have to use the square centimeter, sorry. And this square, when you are going to put, when the area in any question, if area you have to find, then that time only you have to put the square. Have you understood? So let us move through the next question. Okay, so before moving to the next question, see in your textbook some questions are given to you. Let us see that question. See what now only just we solve. See solved examples में आपके questions दिए, दो questions दिए, just you have to go through. Here यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Length of the diagonals of a rhombus are this and this, respectively find the area of a rhombus. So यहाँ पे भी देखो area of rhombus है. अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को भी रेफर कर सकते हो. यहाँ पे सेम है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल. इसमें डायगोनल्स की लेंथ दिया है, फिर उसको कैंसिल की है, और सेम हमने जिस तरह अभी प्रोसीजर किया था बस उसी तरह आपको करना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक आपका क्वेश्चन है यहाँ पे. ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है. मतलब रोम्बस जो है ऑलरेडी सबसे पहले तो आपको एरिया दिया गया है. ठीक है, कितना? 96 सेंटीमीटर दिया है. उसके बाद क्या दिया है आपको? कोई भी एक डायगोनल्स की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ इट साइड्स. लेंथ ऑफ इट साइड्स मतलब कौन सी साइड फाइंड करना है स्टूडेंट? जैसे देखो सपोज मैंने एक रफ में ले लिया, तो सबसे पहले एक लॉजिक लगाना है आपको. बेसिकली डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज दैट व्हाट कॉन्सेप्ट इज गिवन टू एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, है ना. तो जनरली मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आधा सॉल्यूशन तो टेस्ट क्वेश्चंस में होते हैं. ठीक है, तो जो दिया है उसका यूज़ करते हुए हमने रफली सॉल्व करते हैं. उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअली हमें क्या सॉल्व करना है और क्या फाइंड आउट है, क्या गिवन है, वो सब आपको पता चल जाएगा. जैसे कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया है? एरिया ऑफ ए रोम्बस इज, मतलब एरिया दिया है, तो ये तो क्लियर हो गया हमको एरिया दिया है ये 96 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, और नेक्स्ट में क्या एरिया दिया रहा, तो हमें क्या पता है एरिया मतलब एरिया ऑफ ए रोम्बस दिया. तो एरिया ऑफ ए रोम्बस का फॉर्मूला क्या है? मैं रफली सॉल्व कर रही हूँ पहले, फिर हम फेयर आउट करेंगे. d1 इंटू d2 क्या है? हाफ इंटू d1 इंटू d2. अब हाफ इंटू d1 एंड d2 है, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो दिया है क्या दिया हुआ? 96 दिया हुआ है, तो हाफ है. तो d1 या d2 की वैल्यू एक आधी कोई गिवन होगी तो ही तो हम कुछ फाइंड कर सकते हैं ना. तो यहाँ पे देखो और आगे पढ़ोगे तो कुछ और दिया हुआ है. वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, मतलब एक डायगोनल इसमें अगर d1 को मैंने 12 कंसीडर किया, इससे आपका क्या निकल जाएगा? d2 निकल जाएगा. कैसे? तो यहाँ पे d2 को हमें फाइंड करना है, तो जो भी d2 के साथ जो भी अटैच है वो हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर करेंगे. तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो ऊपर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और d2. ठीक है, इस तरह हमने फाइंड कर लिया. अब इसको कैंसिल करो, 12 1 जा 12 8 जा, तो 8 2 16 d2, मतलब d2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 16 सेंटीमीटर, है ना. तो अगर मैंने एक सपोज फिगर ड्रॉ किया, ये रोम्बस है. ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है? अब इसमें d1 की वैल्यू मिल गई हमें और d2 की वैल्यू मिल गई. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड्स. क्वेश्चन क्या है आपको कि लेंथ ऑफ इट साइड्स मतलब ये साइड्स, ये जो है ना ये वाली साइड्स आपको ये फाइंड करनी है. तो ये कैसे फाइंड करोगे? ऑफ कोर्स हमें डायगोनल्स की लेंथ तो पता चल गई, एक जो है d1 है और दूसरा है d2. तो d1 कितना था आपको स्टूडेंट्स?
D1 कितना था आपके पास 12 सेंटीमीटर था और D2 कितना था 16 सेंटीमीटर था। तो D1 का जब हम लोग नहीं सब आपको तो पता है डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड ईच अदर, मतलब जो भी वैल्यू इसकी रहेगी ये हाफ हो जाएगी। तो D1 की अगर 12 है तो वो क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा, और यहाँ पे D2 जो फाइंड किया 16 तो वो 8 हो जाएगा, है ना। अगेन आई एम ड्रॉइंग क्लियर फिगर। तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये D1 अगर हमने 12 सेंटीमीटर किया तो ये कितना होगा 6 होगा, और ये 8 सेंटीमीटर होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इस लेंथ ऑफ वन साइड फाइंड कर सकते हैं, है ना। लेंथ ऑफ वन साइड करते तो फिर लेंथ ऑफ वन साइड फाइंड करें तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द रोम्बस क्या ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो वन साइड अगर हमें कुछ वैल्यू मिल गया तो हम ऑल द साइड भी सेम वैल्यू हो सकता है ना। तो उसी तरह फाइंड करना है तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले एरिया से हमें डायगोनल फाइंड करना है। पहला स्टेप में एरिया से हमें क्या फाइंड करना है डायगोनल। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर है तो उसका हाफ करना है। तो हमें मतलब क्या मिलेगा, हाफ साइड्स मिल जाएंगे। तो हमें इससे क्या मिलेगा, थर्ड स्टेप में अगर हम लोग यूज़ करना है हमें पाइथागोरस थ्योरम, कोई भी एक ट्रायंगल हमें कंसीडर करना, जैसे ABCD होगा और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M दिया, तो हमें ट्रायंगल कंसीडर करना है AMD में, जो कि MD की जो साइड हमें मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर और AM की साइड मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर। उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। अब देखो आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, सेम है यहाँ पे। देखो एरिया ऑफ पहले कंसीडर किया है कि ये एक फिगर रोम्बस का है, उसके बाद डायगोनल्स जो है वो आपका BD दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, उसके बाद एरिया दिया है जो घी मैंने वो लिखा गया, उसके बाद हमें लेंथ ऑफ द डायगोनल AC, मतलब दूसरा हमें लेंथ क्या डायगोनल का फाइंड करना था। तो फिर जैसे मैंने बताया था हाफ इंटू D1 D2 किया, फिर लेंथ ऑफ AC आपको मिल गया इस तरह 16 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने क्या दिया, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो ये E जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस है, और हमें प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड ईच अदर, उसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, इनका हाफ मेजरमेंट मिल जाएगा। इट मीन्स दैट जो लेंथ ऑफ D है वो हाफ ऑफ DB है, तो ये 6 और ये 6 मिल जाएगा, मतलब ये 6 मिल जाएगा, और फिर बाकी का जो है वो 12 है तो ये 4 मिल जाएगा। फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ एक ट्रायंगल कंसीडर किया इन्होंने ADE, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल कंसीडर किया और इसका एक साइड फाइंड किया। AD का 10 सेंटीमीटर मिला, देखो फाइंड करने में पाइथागोरस से E का वैल्यू 8 स्क्वायर लिखा और DE का वैल्यू कितना लिया 6 स्क्वायर। सो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 100। सो 100 मतलब क्या है, 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 10 का। सो लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इट मीन दैट साइड ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह ये लगता है बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वास्ट क्वेश्चन लगता है, बट इट इज़ वेरी वेरी इजी स्टूडेंट्स। ओके, सो लाइक दिस वे क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस आर गिवन टू यू ऑन लाइक दिस वे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन के अनुसार ये थर्ड और फोर्थ भी गिवन है। ओके, so students let us solve the third question now. Okay, I already wrote in my notebook and you have to also write. सी अब इसमें भी कैसे दिया है वो, इसको भी रफ में देखिए क्या दिया है अभी। अब जस्ट ये थोड़ा सा ऑपोजिट है। अब इसमें क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस गिवा है। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस दिया हुआ है। और आपको पता है पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, है ना, सब सॉरी सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, इट्स कॉल्ड एज अ रोम्बस, नॉट अ डायगोनल, सॉरी। तो और हमें क्या दिया है, पहले वो लिखेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ, जो दिया है उसी से हम फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या दिया हुआ है आपको, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके पहले हमें रोम्बस का फिगर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब इसको मैंने नाम दे दिया ABCD, ड्रॉ कर दिया, डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ में कंसीडर करना है क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। अब डायगोनल्स है तो हमें पता है पेरीमीटर means sum of the length of all the sides, so we know that perimeter of a rhombus जो दिया है उसी से हम पहले क्या है, कितने साइड से 4 है तो 4 into side, so perimeter of a rhombus is 100 and this one is 4 into
साइड, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू साइड, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द साइड, सो दिस 4 वी हैव टू ट्रांसफर डाउन, ओके। तो कैंसल इट, सो हाउ मच, 4 1 जा 4, 25 जा, तो 25, 4 1 जा 4, 2 जा 5 जा, तो साइड, सो व्हाट यू आर गेटिंग, साइड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन से हमें सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है नेक्स्ट, क्या है दिया हुआ है, एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। मतलब एक डायगोनल आपको दिया गया 40 सपोज अगर मैंने ये डायगोनल कंसिडर बी डी, ठीक है, एक डायगोनल बी डी, मतलब मैंने सपोज D1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर दिया गया आपको, 48 सेंटीमीटर अगर दिया रहेगा, ठीक है। ये आपको क्या है, गिवन है, इससे आपको क्या होगा, ये 48 सेंटीमीटर है, इट मीन्स दैट यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल सेकेंड वन ऑल्सो, यस। सो लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, सो वी नो दैट। अब इसमें क्या करना है, डायगोनल्स प्रॉपर्टी यूज करनी है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इट मीन्स दैट क्या होगा, अगर M जो है ये क्या होगा, M को आपको कंसीडर करना है, M इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ डायगोनल। सपोज मैंने M लिख दिया, तो आप लिखोगे इन फिगर हियर M इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल of a rhombus. It means that जो लेंथ ऑफ BM है वो क्या होगी, हाफ इंटू लेंथ ऑफ BD होगी। इट मीन्स दैट BD कितना दिया आपका, 48 सेंटीमीटर है, सो हाफ इंटू BD क्या होगा, 48, सो कैंसिल इट, सो यू विल गेट 2 2 जा एंड 2 4 जा, सो BM की जो वैल्यू है वो कितनी निकल जाएगी, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब आपकी ये जो BM की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मिल गई, 24 सेंटीमीटर, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड हियर व्हाट, सपोज वी हैव टू कंसीडर हियर ट्रायंगल, सो BM इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल कंसीडर करना है AMB। अब थर्ड स्टेप क्या होगी, इन ट्रायंगल AMB, कोई भी एक ट्रायंगल आप कंसीडर कर सकते हो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों हम ये कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखो एक डायगोनल्स तो मिल गया, दूसरा डायगोनल्स जो है वो फाइंड करना है ना, इसका मेजर आपको फाइंड करना, और आपको तो पेरीमीटर से क्या मिल गया, साइड्स का तो वैल्यू मिल गया। पहला क्वेश्चन में हमने जो टेक्स्ट बुक में देखा था उसमें देखो साइड्स पहले ही दिया था, बट इसमें साइड किससे मिला, पेरीमीटर से मिला। तो ये 25 ये 24 है, तो लेंथ ऑफ AM फाइंड करना है। लेंथ ऑफ AM फाइंड करने से आपको क्या लिखा है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अब लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स के बाद आपको एरिया ऑफ डायगोनल क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। इट मीन्स दैट एरिया ऑफ अ रोम्बस फाइंड करना, और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो D1 तो हमारे पास है, बट D2 कहाँ पे है, तो इसीलिए हमें ये प्रोसीजर करनी पड़ रही है, क्योंकि हमको डायगोनल सेकेंड लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है। हैव यू अंडरस्टूड, ओके। सो राउट हियर फिगर एंगल AMB जो है वो क्या दिया हुआ, 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AB जो है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर, मीन्स AM स्क्वायर प्लस BM square. So what is the value of AB square, means 25 square, and AM we have to find here, and BM how much, now only we calculate here, BM की वैल्यू कितनी है, 24 square. What is the perfect square of 25? It is the 625, and AM as it is you have to write, and 24 square means here 576. Now we have to find the AM square, so AM square is equal to what, 625 minus 576. Therefore AM is equal to, if you are going to minus it, so how much you are getting, AM square is equal to 49. So 49 किसका perfect square है students? Yes, 7 का. So what you have to write here? Therefore AM is equal to 7 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें क्या मिल गया कि एक डायगोनल का लेंथ हमें मिल गया, यहाँ पे क्या है, ये 7 है,
ठीक है। और ये एक जो है वो आपको मिल गया है यहाँ पे 48 था तो 24, ठीक है, ये मिल गया आपको। ओके, एक साइड हमें 7 मिल गया, एक 24 है, तो आपको पता है कि ये कंप्लीट डायगोनल कितना होगा, इसका डबल, मतलब ये 14 और ये कितना हो जाएगा 48, मिल गया आपको। तो इसका मतलब है आपका BM, अगर BM 24 है तो BD आपको था यहाँ पे, BD कितना है 48 सेंटीमीटर। वैसे ही आपको सेम प्रोसीजर करना है। AM अगर 7 सेंटीमीटर है तो AC क्या होगा, डबल है किसका, AM का, तो मतलब 2 × 7, सो AC इज इक्वल टू कितना होगा 14 सेंटीमीटर। ओके, वैल्यू फाइंड होगी, AC की वैल्यू फाइंड होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, लास्ट एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मीन्स एरिया ऑफ रोम्बस यू हैव टू फाइंड। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट मीन्स D1 इंटू D2, सो हाफ इंटू D1 कितना है 14 एंड D2 इज 48, so cancel it, 2 1s are 2 7s are, anyone you can cancel, so we will get 36, so 336. So this is not your last answer. Last answer is what here, area of a rhombus, or you can write area of a rhombus ABCD is equal to 336 square centimeter. Hence proof, like this way is there. Okay, question is so much long student, but don't सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको बहुत इजी होता है। जस्ट यू हैव टू सी वॉट एवर द क्वेश्चंस आर गिवन टू यू, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे, पहले लॉजिकली सॉल्व करो, देन ओनली यू कैन फेयर इट। Okay, in the next lecture video I'm going to solve the last question, fourth one is also very easy. Okay, otherwise you just try it. If you are having feeling any doubt, so you can ask me. Okay student, thank you.